Okay, so good afternoon. Let us start. Okay. So this is our today. We'll be starting our new chapter. New subject. It's basically not the theoretical subject. It's your sessional base. Okay, like practical. Here we will not be doing some experiment and all like that thing. We won't be doing. Okay. What we will do? We will practice. We'll practice numerical from cost and estimation subject. Okay. So this is the topic name. See, please note down the subject code and the subject name. Okay. Yes, ma'am. Sessional Yes, ma'am. paper code and paper name. That is 695. See, it's 9 is here, right? That means it's your sessional or practical subject, not the theoretical subject. Okay. Yes, ma'am. And the name of the subject is what? Quantity survey, estimation and valuation. You can note it down. Quantity survey, estimation and valuation. Okay, QSEV. QSEV. So today we will not start any numerical. We will just discuss about the topic. Or we will have an overview over the subject. Okay, what we will learn and what types of the problem that we will solve or we will practice in this lecture. Okay, in this subject. The first is the syllabus. So from the syllabus, this is the first topic. What? Quantity survey and estimate. And under this topic, these are the various points that we need to learn. First is what? We will have some basic idea about the types of the estimates. Okay. So here we will learn what are the different types of the estimate. First, we will also learn what is the definition of the estimate. Okay. And Yes, ma'am. methods of, see here estimate means what? We are doing building estimate. We are not considering any other estimate. We will consider, but first initially what we will learn how to estimate we will do how to conduct a building estimate. Okay. So what are the different types of the estimate that we can use, what are the different terminologies which is required to do this estimate, all these things we will be learning in this topic. Okay. Quantity estimate of single storage building. So after getting the basic knowledge, we will try to do numericals, or we will try to find out the quantity estimate of single storage building. Single storage Okay. building means one floor, only one floor building we will try to analyze. Okay, we will try to estimate. Now bill of quantity. After estimation, what happens? The quantity estimation means what? क्वांटिटी एस्टिमेशन का मतलब क्या है? किसको कोई आइडिया है एस्टिमेशन का मतलब क्या है? पहले ये बोलो तो। मैम एस्टिमेशन का मतलब होता है कि आप आइडिया देना कि मतलब कितना खर्चा होगा। एग्जैक्टली खर्चा मेन जो ऑब्जेक्टिव हम लोग इस चीज का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या? हमको खर्चा निकालना है। ओके ऐसा हो सकता है कि इट इज नॉट दी एकदम एग्जैक्ट कॉस्ट कितना होगा ये हमको नहीं मिलेगा, राइट? हमको एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मिल सकता है कि अच्छा हम लोग का प्रोजेक्ट है, इतना बजट हो सकता है, इतना खर्चा हो सकता है। दिस इज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। ओके बट बिफोर डूइंग द कॉस्ट एस्टिमेशन वी नीड टू एस्टिमेट व्हाट हाउ मच क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। से फॉर एग्जांपल तुम एक अर्थवर्क कर रहे हो या तुम सपोज फुटिंग बना रहे हो, ठीक है? तो फुटिंग बनाने में पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क्स कि क्या क्या आइटम्स ऑफ वर्क होता है एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, बिल्डिंग इज नॉट एज अ होल हम कंस्ट्रक्ट नहीं करते, टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं ना, वी आर मतलब पार्ट पार्ट में वी आर कंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, फर्स्ट क्या करते हैं माटी को निकालते हैं, फिर उसके बाद वी विल डू सम पीसीसी वर्क ऑन द फुटिंग, देन वी विल डू रेनफोर्समेंट, लाइक दैट वी विल गो, राइट? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स, आइटम्स ऑफ वर्क्स। तो पहले वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? एंड इन दोज आइटम्स ऑफ वर्क व्हाट आर द डिफरेंट क्वांटिटीज दैट वी हैव टू एस्टिमेट। एग्जाम्पल कि माटी को कितना एक्सकवेट करना है, कितना वॉल्यूम ऑफ माटी, अर्थवर्क हैज टू बी एक्सकवेटेड, ये इसका क्वांटिटी निकालो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, कितना रेनफोर्समेंट स्टील लग रहा है, ठीक है, उसका एस्टिमेट निकालो। कितना तुम्हारा पीसीसी लग रहा है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट लग रहा है, उसका एस्टिमेट निकालो। अगर पीसीसी निकाल पाओगे तो ऑब्वियसली कंक्रीट में क्या क्या रहता है, एग्रीगेट कितना लग रहा है, सैंड कितना लग रहा है, सीमेंट कितना लग रहा है, सब हमको मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज इंडिविजुअल मटेरियल का इंडिविजुअल अलग अलग कॉस्ट होता है, रेट होता है, राइट? तो हम एक साथ
अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स का भी कॉस्ट निकाल सकते हैं. सो वंस वी कैलकुलेट दिस क्वांटिटी, देन जो रेट है मार्केट में, जो ईच क्वांटिटी या ईच मटेरियल का जो रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द कॉस्ट. ओके. और जो हम लोग का ये जो खर्चा का रिलेटेड जो भी हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं उसको हम लोग बिल ऑफ क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर देंगे. ओके. फिर क्वांटिटी एस्टिमेट करने के बाद बिल ऑफ क्वांटिटी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके साथ पैसा को ऐड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट. तो पहले क्वांटिटी एस्टिमेट, देन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट. तो ये दो मेन फंडा है. फर्स्ट हमको क्वांटिटी चाहिए, देन रेट वी विल गेट फ्रॉम शेड्यूल ऑफ रेट्स. ओके. शेड्यूल ऑफ रेट्स बोल के एक वो बुक होता है जहाँ पे डिफरेंट जगह पे प्लेस टू प्लेस द रेट ऑफ डिफरेंट मटेरियल विल वेरी. ठीक है. किसी जगह पे Yes, ma'am. किसी का रेट ज्यादा हो सकता है, सीमेंट का रेट ज्यादा हो सकता है, किसी जगह पे वही सीमेंट का रेट कम भी हो सकता है. ओके. इट विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल्सो. इसीलिए तुम्हारा कॉस्ट भी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ऐसा होता है. ठीक है. मतलब एस्टिमेशन इट मे बी इक्वल टू ग्रेटर देन और लेसर देन द एग्जैक्ट कॉस्ट. ओके. इसीलिए एस्टिमेट बोल रहे हैं. फिर उसके बाद हम लोग, ये तो हो गया बिल्डिंग एस्टिमेट. अब अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग और क्या 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 एस्टिमेट हमको सीखना पड़ेगा. फर्स्ट इज क्वांटिटी एस्टिमेट ऑफ रोड वर्क. रोड मतलब एम्बैंकमेंट कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं. मेनली यहाँ पे रोड मतलब है अर्थ वर्क. ओके. रोड कंस्ट्रक्शन करने में अर्थ वर्क कितना लग रहा है, कितना माटी को हमको एक्सकेवेट करना है, या कितना वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क हैज टू बी फिल्ड, ये हमको चाहिए. ओके. अंडरग्राउंड रिजर्वायर, सरफेस ड्रेन, सेप्टिक टैंक. सो दीज आर द अदर these are the other construction work that we need to estimate कि कहाँ पे तुम्हारा estimate कैसे करना है. ओके. नेक्स्ट इज जो हम लोग स्टील का एस्टिमेट चाह रहे हैं. ठीक है. स्टील कि तुम्हारा रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में कितना अमाउंट ऑफ स्टील है, वो कैसे निकालेगा. द मेथड विच वी आर यूजिंग इज कॉल्ड द बार बेंडिंग शेड्यूल. ये इंपॉर्टेंट है. ओके. ये वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोग का इन फ्यूचर में भी. इसको बोलते हैं BBS. यहाँ से हमको क्वांटिटी फिर से वही निकालना है, क्वांटिटी ऑफ स्टील ही निकालना है. ओके. रेट एनालिसिस. ठीक है. इसमें क्या होता है, आई विल शो यू. इसमें होता क्या है हम बोलेंगे. ठीक है. तो दूसरा टॉपिक क्या है, स्पेसिफिकेशंस ऑफ मटेरियल्स एंड वर्क. कि कौन सा मटेरियल्स का प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हैं, मतलब सीमेंट वर्क, कंक्रीट वर्क, ब्रिक मशीनरी वर्क, ठीक है, अर्थ वर्क, सबका स्पेसिफिकेशंस क्या है, दैट वी विल बी लर्निंग. और लास्ट में जो आता है वैल्यूएशन. सी ऑल दिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब तुम्हारा क्या होता है, एक है बिफोर कंस्ट्रक्शन का काम है और एक है कंस्ट्रक्शन हो गया, कुछ दिन बीत गया, उसके बाद का मतलब एक में भी कॉस्ट निकालना है. ठीक है. एस्टिमेशन में भी कॉस्ट निकालना है, वैल्यूएशन में भी कॉस्ट निकालना पड़ेगा. ठीक है. वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू कितना है, वो भी हमको एनालाइज करना पड़ेगा. ठीक है. सो कोई बोल सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट एंड वैल्यूएशन. देन एस्टिमेट हम किसको बोलेंगे और वैल्यूएशन हम किसको बोलेंगे, एनी आइडिया? ম্যাম এস্টিমেটটা হচ্ছে রাফ ওয়ার্ক এর জন্য, মানে একটা জাস্ট অ্যাপ্রক্সিমেট ধরে নিলাম, বাট ভ্যালুয়েশন हाँ. যে প্রেজেন্ট মার্কেট ভ্যালু আর देन व्हाट इज वैल्यूएशन. वैल्यूएशन क्या है, वो भी तो रफ ही है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं हम लोग को, राइट. वो भी तो ম্যাম rough ওটা ही তো होगा. প্রেজেন্ট মার্কেটের উপর নির্ভর করবে ভ্যালুয়েশনটা কত হচ্ছে নাকি. ठीक है. एक वो एग्जांपल है, सबसे अच्छा सबसे एक्यूरेट हम बोल सकते हैं कि क्या है, एप्रोप्रिएट आंसर है कि एक होता है कंस्ट्रक्शन करने के पहले, बिफोर कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी एस्टिमेशन. ओके. एंड एक है Yes, ma'am. कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग सब कुछ बन गया, ठीक है, बिल्डिंग का लाइफ भी बढ़ रहा है करते करते, आफ्टर सपोज आफ्टर कंस्ट्रक्शन अब हम उसको बिक्री करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, राइट. नॉट ओनली इन केस ऑफ सेलिंग, इन केस ऑफ बाइंग ऑल्सो यू हैव टू डू द वैल्यूएशन. मतलब कि एक है एस्टिमेशन खड़ा, मतलब बिल्डिंग खड़ा नहीं हुआ है, उसके पहले हम लोगों ने कुछ अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एनालिसिस किया, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन. एक बिल्डिंग खड़ा हो गया, अब उसके बाद इसका दाम कितना होगा मार्केट में, दैट इज द वैल्यूएशन.
ठीक है, मतलब एक होगा एग्जिस्ट ही नहीं किया, अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं हुआ है, एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसका कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, एस्टिमेशन। और एक एग्जिस्ट कर रहा है, अब उसका कितना कॉस्ट एनालिसिस होगा या कितना कॉस्ट होगा या वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड द वैल्यूएशन। इज इट क्लियर? सो दीज आर द हाँ टॉपिक। मैम। हाँ, और ये वाला सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट विल बी टॉट बाय योर सुजाता मैम ऑल्सो, थ्योरेटिकल पोर्शन। वो अगर कुछ प्रॉब्लम्स कराते तो ठीक है, हम भी यही करेंगे, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। ओके, यस मैम। सो दीज आर द डेफिनेशन। फर्स्ट में क्या रहा है, क्वांटिटी सर्विंग इज व्हाट, इट इज द कंप्यूटेशन, मतलब कैलकुलेशन प्रोसेस जो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटी सर्विंग। ओके, सो कंप्यूटेशन और कैलकुलेशंस ऑफ द क्वांटिटीज, क्वांटिटी का सिर्फ कैलकुलेशन, ओके, रिक्वायर्ड एंड एक्सपेंसेस लाइकली टू बी इनकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क। ठीक है, एस्टिमेटिंग का क्या है, इट इज द प्रोसीड्यूर ऑफ कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेट करने का जिस, देयर आर सेवरल मेथड्स, एस्टिमेटिंग का सेवरल मेथड होगा, हम कौन सा मेथड फॉलो करके ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड द एस्टिमेशन। ओके, और दूसरा क्या है, कॉस्टिंग क्या है, इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। एस्टिमेशन मे नॉट बी इक्वल टू द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, ये मे नॉट बी इक्वल टू द एक्चुअल कॉस्ट। एस्टिमेशन कम भी हो सकता है एक्चुअल कॉस्ट से, ज्यादा भी हो सकता है। ओके, ये अप्रोक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं होता है। ठीक है, बट कॉस्टिंग क्या है, इट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वर्क बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ इट। मतलब कि क्या है, देखो एस्टिमेशन है, हमने तुमको सपोज एक बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग बनाने से पहले तुमने सब खर्चा मतलब रेट, ये सब शेड्यूल ऑफ रेट से रेट लेकर ये लेकर करके तुम लोगों ने एस्टिमेशन कर लिया। लगेगा कि सपोज 100 रुपीज का काम होगा, ठीक है, कोई एक काम कर रहे हो, तुमको लग रहा है उसमें 100 रुपीज का हो सकता है काम। ठीक है, एस्टिमेशन ये वाला तुम्हारा आया है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, या तुम प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो, करते करते लगा कि क्या शायद 90 रुपीज में भी खत्म हो जाए वो काम, राइट, या 100 से ज्यादा 110 रुपीज भी लग सकता है वो काम खत्म करने में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग क्या है, हमने 100 रुपीज का एस्टिमेट बनाया था, अपने पास 100 रुपीज का अपने पिताजी से, मम्मी से, किसी से भी लोन ले लिया, बोल रहे कि हमको 100 रुपीज दे दो, थोड़ा 100 रुपीज ले लिया तुमने। ठीक है, अब तुम वो प्रोजेक्ट कर रहे हो, करते करते तुमको ऐसा हो सकता है कि 100 से कम भी लग सकता है, 100 से ज्यादा भी लग सकता है। ओके, दैट इज कॉल्ड द कॉस्टिंग। ओके, अब तुमने वो प्रोजेक्ट बना लिया, अब तुम उसको सेल करोगे। ठीक है, मार्केट में यू विल सेल दैट प्रोडक्ट। नाउ अब किस कॉस्ट पे तुम सेल करोगे, किस अमाउंट में सेल करोगे, दैट इज द वैल्यूएशन। ओके, सो वैल्यूएशन इज द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ फेयर प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टीज। वैल्यूएशन इट मे बी अगेन कॉस्ट, जितना खर्चा लगा उससे तुम्हारा वैल्यूएशन के बाद जो पैसा निकलेगा कि हम इसको इतना में बिक्री करेंगे, वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। सपोज तुमने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, वो पहले बहुत डिमांड में था, लेकिन स्लोली स्लोली इसका डिमांड खत्म हो गया, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम क्या करोगे, वो प्रोडक्ट का दाम को क्या कर दोगे सेल करने के लिए। पहले बहुत डिमांड में था, तब ऑब्वियसली तुम बहुत प्रॉफिट लेते, बहुत, तुम्हारा सपोज 100 रुपीज का अगर खर्चा होता तो तुम 200 में उसको बिक्री करते, 150 में तुम बिक्री करते, क्योंकि उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, राइट। लेकिन एज द टाइम, मतलब जैसे लैप्स होता गया, वो प्रोडक्ट का मतलब डिमांड कम होता गया, मार्केट में उसका डिमांड कम होता गया। तुम्हारा तो प्रोडक्शन ऑलरेडी जमा हुआ है, तो तुम क्या करोगे, उसको बेचोगे, नहीं बेचोगे, लेकिन क्या करोगे, अब कम दाम में बेचोगे। तो 100 कॉस्ट मतलब खर्चा हुआ था तुमको बनाने में, वो प्रोडक्ट बनाने में 100 रुपीज खर्चा हुआ था, अब तुम उसको बिक्री करोगे सपोज 90 रुपीज में तुम बिक्री करोगे। अब जब पहले डिमांड बहुत ज्यादा था, तुमने 150 में बिक्री किया, अब डिमांड बहुत कम है, ठीक है, तुमने किस में बिक्री किया, 90 रुपीज में। सो दैट इज कॉल्ड द वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन भी चेंज होता रहता है। ओके, क्लियर, क्लियर है ना, ये तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया। तो यस मैम। एस्टिमेशन क्या है कि अप्रोक्स है, ठीक है, कॉस्ट क्या है, एग्जैक्ट कितना खर्चा हुआ तुम्हारा, ठीक है, तुमने अप्रोक्सीमेट लगेगा, अच्छा मेरा इतना अप्रोक्सीमेटली खर्चा होगा बनाने में वो प्रोडक्ट। ओके, कॉस्ट क्या है, कितना बनाते समय तुम्हारा एग्जैक्टली पॉकेट से कितना पैसा गया, दैट इज कॉस्टिंग। और वैल्यूएशन क्या है, आफ्टर
मतलब वो प्रोडक्ट तुम्हारा कंप्लीट होने के बाद क्या करोगे, तुम उसको मार्केट में किस दाम पे बेचोगे, दैट इज द वैल्यूएशन। ओके, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टिमेट क्या है, एस्टिमेट से हमको क्या क्या पता लगता है कि कितना रिसोर्स लगेगा। ओके, यहाँ पे रिसोर्स क्या आता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क में रिसोर्सेस मेनली क्या होता है बोलो तो, मटेरियल्स, राइट। मटेरियल्स जैसे तुम कहाँ से बाली लाओगे, ठीक है, तुम कितना बाली लाओगे, कितना सीमेंट लाओगे, कितना स्टील लाओगे, सो ये रिसोर्स को भी आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, हमारा सपोज हमको इतना अमाउंट ऑफ अर्थ वर्क लगेगा, तो अर्थ यहाँ पे माटी कहाँ से लाओगे, तुमको बाहर से लाना पड़ेगा अगर यहाँ पे नहीं है तो, राइट। अगर यहाँ पे है तो ठीक है, अगर बाहर से लाओगे तो फिर से उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगा। सो एस्टिमेशन, राइट। दूसरा रिसोर्स का भी हमको पता चलता है। दूसरा है टाइम, ठीक है। सपोज तुम्हारा 2 प्रोजेक्ट तुमको मिला है, एक का बहुत ज्यादा अमाउंट मतलब एस्टिमेट हो गया, एक का थोड़ा कम एस्टिमेट हो गया, तो दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट तुमको लग रहा है जल्दी खत्म होगा? 2 प्रोजेक्ट तुमको मिला है, एक में देख रहे हो कि बजट बहुत ज्यादा हो रहा है, एस्टिमेट करके देख रहे हो इतना ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और दूसरा का उसका 50% लग रहा है खर्चा, एस्टिमेशन, ठीक है, रफ एस्टिमेशन, रफ कॉस्ट। तो कौन से तुमको लग रहा है कि बड़ा प्रोजेक्ट है? बड़ा प्रोजेक्ट मतलब टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला जिसका बहुत ज्यादा ह्यूज बजट है, राइट। तो उससे भी हमको टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट पता चल सकता है। ह्यूमन स्किल्स, ठीक है, इसमें भी तुम्हारा देखो लेबर जो होता है, एक लेबर क्या हर काम कर सकता है? एक लेबर हर काम कर सकता है? नहीं मैम, नहीं, डिफरेंट लेबर्स के लिए डिफरेंट स्किल्स होता है, डिफरेंट स्किल्स हिसाब से वो डिफरेंट काम हम उसको देना पड़ता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा ब्रिक जो मतलब उठा के जो जाते हैं, राइट, वो तुम्हारा वर्कर्स, कारपेंटर अलग हो गया, राइट, ये सब अलग अलग टाइप का, हेडमेसन अलग है, ठीक है, मिस्त्री अलग है। Yes, सो ऑल दीज आर द डिफरेंट ह्यूमन स्किल और ह्यूमन रिसोर्स विच आर रिक्वायर्ड, ये भी हमको पता चलता है, ये हम देखेंगे, ठीक है, कौन सा चैप्टर में ये वाला पता चल रहा है। ओके, तो ये जो कैसा टाइप का मैसन मतलब ये लेबर लग रहा है, तो उस हिसाब से रेट भी चेंज होगा, मानते हो ना? मानते हो? हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ, जिसका ज्यादा स्किल उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, देना पड़ेगा, लेबर वही चार्ज, तो। राइट। तो हाँ मैम, पैसे से एवरीथिंग अगेन मतलब कहाँ पे जा रहा है? पैसे में ही जा रहा है, ठीक है। स्किल तो ज्यादा ये होगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए ये ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि स्किल के कौन सा लेबर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उसको ज्यादा पैसा भी देना पड़ेगा, तो कॉस्ट में फिर से एस्टिमेशन आ जा रहा है, ठीक है। और कॉस्ट का तो अल्टीमेट तो हमको कॉस्ट ही निकालना है, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ही निकालना है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टिमेट। अब पर्पोज आता है कि कहाँ कहाँ पे वी कैन यूज द एस्टिमेट। एस्टिमेट जो हमको मिला है कि कोई एक प्रोजेक्ट का कितना अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकला है, सपोज वो मिला है, तो व्हाट आर द डिफरेंट पर्पजेस ऑफ द एस्टिमेट, कहाँ कहाँ पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं। ओके, वैल्यूएशन में भी यूज सकते हैं। पैसा, सपोज तुमने एस्टिमेट किया 100 रुपीज लगेगा, ठीक है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 50 रुपीज है, तो तुम क्या करोगे? किसी से बोरो करोगे एक्स्ट्रा 50 रुपीज, राइट। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे पॉकेट में अगर 100 रुपीज पहले से ही होता तो क्या होता? तुमको बोरो करने का जरूरत नहीं, दैट प्रोजेक्ट इज विद इन योर बजट, राइट। तुमने 100 रुपीज का एस्टिमेट किया है, तुम्हारे पास 100 रुपीज ऑलरेडी है, तो तुम ये एस्टिमेट कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, वो प्रोजेक्ट हाथ में ले सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास 50 रुपीज है और तुम्हारा एस्टिमेशन निकला है 100 रुपीज, तो एक्स्ट्रा 50 तुमको किसी और से लेना पड़ेगा ना। तो यही सब आता है कि हमको लोन लेने में भी ये वाला हेल्प करता है एस्टिमेट, कि कौन सा प्रोजेक्ट में लोन का जरूरत है, लोन देना चाहिए, कौन सा फिजिबल है। ऐसा प्रोजेक्ट है कि सपोज तुम्हारा पास 100 रुपीज है और तुम्हारा प्रोजेक्ट आ गया 10,000 रुपए का, तो तुम करोगे वो प्रोजेक्ट? हाँ, नहीं मैम, नहीं, तो फिजिबल नहीं है ना तुम्हारे। हम ये एग्जांपल छोटा छोटा एग्जांपल दे रहे थे, 1,000 10,000 का तो नहीं होता है, प्रोजेक्ट बहुत बहुत अमाउंट का होता है, तो वो भी तो होना चाहिए कि इतना अमाउंट हम लोग के बजट में है कि नहीं, तो हम वो लेंगे कि नहीं लेंगे। ओके, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के लिए ये हम बोल रहे बेसिकली। क्लाइंट दे देगा काम, पैसा भी देगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को भी तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, उस हिसाब से। सो पर्पज हम लोग ये डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट हमको क्या निकालना है? क्वांटिटी एस्टिमेट निकालना है। दिस इज द सैंपल कि कैसे हम लोग निकालेंगे। दिस इज द शेड्यूल। ओके, फर्स्ट में आएगा सीरियल नंबर,
डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम, आइटम क्या क्या है वो हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। सिमिलर टाइप का आइटम कितना नंबर्स है, एक तो सपोज तुम्हारा क्या बोलते हैं अर्थवर्क है, फुटिंग में जो अर्थवर्क करना पड़ता है वैसा फुटिंग कितना सारा है, सपोज 10 टू फुटिंग है तो यहाँ पे 10 टू यहाँ पे होगा अर्थवर्क लिखेंगे, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, नंबर विल बी 10, ओके। अगर हम एक का लेंथ ब्रेथ डेप्थ निकाल के वॉल्यूम निकालेंगे तो टोटल क्वांटिटी कितना होगा, सपोज 10 तो है, यहाँ पे Q1 आया है तो Q1 into 10 विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क फॉर 10 फुटिंग, ओके। एक फुटिंग का अगर Q1 है तो 10 टू फुटिंग का कितना होगा टोटल यहाँ पे आएगा, ओके। क्लियर है ना, सॉरी यहाँ पे आएगा, ओके। यस मैम। ऐसा हमको चार्ट बनाना पड़ेगा। दिस इज वन एग्जांपल, देखो अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन दिया है, ठीक है। तो इसका नंबर कितना देखो 12 तो फाउंडेशन है, 12 फाउंडेशन है, एक एक फाउंडेशन का 12, yes. लेंथ इतना है, ब्रीथ इतना है, हाइट या डेप्थ इतना है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू ये एक फुटिंग का अर्थवर्क इतना है, दिस इंटू दिस, तो 12 नंबर्स का कितना होगा, तो इंटू 12 कर देंगे, करके देखो इतना आएगा, ठीक है। सिमिलरली पीसीसी का भी वही करेंगे, ठीक है। अब ये देखना है कि ये अर्थवर्क का यूनिट मीटर क्यूब है, पीसीसी को भी हम मीटर क्यूब में करते हैं, ठीक है। कोई किसी किसी का यूनिट विल बी इन मीटर स्क्वायर, तो दोज आर कॉल्ड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि हम कैसे मेजर करेंगे। अर्थवर्क को हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं तो हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, पीसीसी को हम किस में निकालेंगे, वॉल्यूम में निकालेंगे, ठीक है। कोई कोई होता है मीटर स्क्वायर में, ठीक है, वो हम लोग देखना है। मीटर स्क्वायर का एक एग्जांपल दो तो, कौन सा आइटम ऑफ वर्क हम लोग मीटर स्क्वायर में करेंगे। मैम जब फ्लोर में टाइल्स देंगे, फ्लोरिंग, ठीक है। सबसे एग्जांपल इजी एग्जांपल है पेंटिंग, कितना एरिया में तुम्हारा पेंट लग रहा है, ठीक है, उस हिसाब से होता है, ओके। या प्लास्टरिंग, कितना एरिया में प्लास्टर कर रहे हो, ये सब मीटर स्क्वायर में है। और रनिंग मीटर में क्या आएगा, रनिंग मीटर में कौन सा आना चाहिए कि इसका यूनिट वी विल मेजर इन मीटर, बोलो। मैम हाइट हो सकता है, कॉलम हाइट, बीम का हाइट क्या हाइट है, हाइट तो कोई वो नहीं है, ठीक है। हाइट तो डायमेंशन है, हम एक आइटम ऑफ वर्क बोले, दीज आर द आइटम्स ऑफ वर्क। देखो अर्थवर्क इन एक्सकवेशन वन आइटम ऑफ वर्क, पीसीसी वन आइटम वर्क, ठीक है। तो ये सब है डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क, तो ठीक है, वो हम डिटेल में अभी बोलेंगे जब आएंगे। तो पहले क्या करना है, हमको क्वांटिटी निकालना है। तो जो शीट से हम क्वांटिटी निकाल रहे हैं इसको बोलते हैं, मेथड को बोलते हैं क्वांटिटी एस्टीमेट, इसको बोलते हैं क्वांटिटी शीट या मेजरमेंट फॉर्म, ओके, मेजरमेंट फॉर्म। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टीमेट। क्वांटिटी एस्टीमेट निकल आया कि कितना वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क लगेगा, कितना वॉल्यूम ऑफ पीसीसी लगेगा, निकल आया। अब हमको क्या करना है, कॉस्ट में कन्वर्ट करना है उसको। कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, सेम आइटम यहाँ पे लिख देंगे, सपोज अर्थवर्क इन फुटिंग, क्वांटिटी कितना है, कितना मीटर क्यूब आया, यूनिट है मीटर क्यूब, रेट मतलब है कि पर मीटर क्यूब का कितना कॉस्ट है, कितना रुपीस। अगर हम बोलेंगे कि एक्सकवेशन मतलब 1 मीटर क्यूब एक्सकवेट करने के लिए 100 रुपीस लगता है, खर्चा है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब अर्थवर्क एक्सकवेट करने के लिए 100 रुपीस लगता है, ठीक है। यहाँ पे सपोज तुम्हारा 10 मीटर क्यूब है तो टोटल कितना होगा यहाँ पे खर्चा, सपोज हम लोग बोल रहे थे कि ये है 100 रुपीस लग रहा है पर मीटर क्यूब के लिए, ठीक है। पर मीटर क्यूब अर्थवर्क इन एक्सकवेशन के लिए 100 रुपीस लगेगा। और तुम्हारा टोटल क्वांटिटी हम बोले थे कितना है अर्थवर्क का, 10 मीटर क्यूब। सो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट, 1000। यस, 1 मीटर क्यूब का 100 लग रहा है तो 10 मीटर क्यूब का क्या होगा, 10 इंटू दिस, राइट। तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो ऐसे निकालना है, ओके। जैसे ये वाला देखो, क्वांटिटी इतना है, यूनिट है मीटर क्यूब, रेट है सपोज 6.5 मतलब रुपीस पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब का इतना खर्चा हो रहा है, तो इसके लिए कितना होगा, दिस इंटू दिस इज गिविंग अस दिस वन। क्लियर, क्लियर है ना। यस मैम। अब देखो मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट, ठीक है। तो एक मेथड है तुम्हारा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, ओके। दूसरा है तुम्हारा सेंट्रल लाइन मेथड, ठीक है। इसमें क्या करना है, एग्जांपल हम दिए बाउंड्री वॉल, देखो ये भी बाउंड्री वॉल है, ये भी बाउंड्री वॉल है ना।
एक मिनट, लेट मी टेक द अटेंडेंस। इतना कम अटेंडेंस क्यों है ये वाले सेक्शन का? सेक्शन में ज्यादा नहीं आता मैम, 6-7 जन ही आता है। जानता नहीं मैम, बहुत स्टूडेंट का बोलता है नेटवर्क, बहुत नेटवर्क स्टूडेंट तो प्रॉब्लम ठीक है, अभी तक। और कुछ स्टूडेंट तो रूपम, ऋतिक, तन्मय वो तो ट्रेनिंग में है। अच्छा ठीक है, देखो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, से फॉर एग्जांपल ये भी बाउंड्री वॉल है, ये भी बाउंड्री वॉल है, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में हमको करना क्या होता है, दिस इज व्हाट, ये किसका सिंबल है, ये ब्रिक वॉक का सिंबल है, ओके। हमको बोला है ब्रिक वॉक का मेजरमेंट निकालो, कितना क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क यहाँ पे लगेगा। ब्रिक वर्क का यूनिट ऑफ मेजरमेंट विल बी मीटर क्यूब, ये याद रखना, ओके। ब्रिक वर्क, कंक्रीट वर्क, अर्थ वर्क, ये सब का क्या होता है, मीटर क्यूब में हमको चाहिए एस्टिमेशन, ओके। तो हमको इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में हम पहले ये लॉन्ग वॉल का एस्टिमेट निकालेंगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का एस्टिमेट निकालेंगे, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क लग रहा है इस वाले हमारा वॉल में, ठीक है। सेम इंटू 2 कर देंगे, तो ये वाला भी तुम्हारा आ जाएगा, 2 लॉन्ग वॉल है, ठीक है। ये भी लॉन्ग वॉल, ये भी लॉन्ग वॉल, ओके। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम शॉर्ट वॉल, मतलब शॉर्ट वॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक है शॉर्ट वॉल, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सो दिस इज व्हाट, लॉन्ग वॉल का हम कहाँ से लेकर कहाँ तक कर रहे हैं, फ्रॉम लेंथ कहाँ से लेकर कहाँ तक कंसिडर कर रहे हैं, आउट टू आउट, इसीलिए इसका नाम क्या है, आउट, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, और आउट टू आउट एंड इन टू इन, ओके। तो लॉन्ग वॉल का हम लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहे पूरा, ये एरिया हमको लेना पड़ेगा, ओके। तो वॉल्यूम कैसे निकल आएगा, इफ वी नो दिस एरिया, अगर ये हमको ये एरिया पता है, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द वॉल सपोज बोला है 3 मीटर है, ओके, हाइट ऑफ द वॉल इज 3 मीटर, बाउंड्री वॉल का सपोज बोले थे 3 मीटर है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस ब्रिक वर्क, कितना होगा। अगर इसको हम 3D में देखेंगे तो क्या होता है, ये वाला वॉल, ये तो टॉप व्यू है, दिस इज प्लान, ठीक है। 3D में जनरली कैसा होता है, तो अगर हम काटेंगे, ये है तुम्हारा वॉल, ऊपर से जो दिख रहा है हमको ये है दैट एरिया, ओके, दिस इज दिस एरिया, ओके। और इसका लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज बोल रहा है 3 मीटर। सो वॉल्यूम कैसे निकलेगा बोलो तो, एरिया इनटू हाइट मैम, एरिया इनटू हाइट, राइट, एरिया इनटू हाइट। सपोज ये 3 मीटर है, सो इफ वी नो दिस एरिया एंड इफ वी मल्टीप्लाई दिस विद द हाइट वी विल गेट द वॉल्यूम, सिंपल, ठीक है। तो इस वाले एरिया का वॉल्यूम हमको निकल आया, सिमिलरली इस वाले एरिया का भी वॉल्यूम हमको निकल आएगा। तो ये क्या है, 2 लॉन्ग वॉल है, तो 2 बार करने का जरूरत है नहीं, ये दोनों तो सेम है ना, तो क्या कर देंगे, जो भी वॉल्यूम आएगा इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 लॉन्ग वॉल है, क्लियर। अब इन टू इन शॉर्ट, अब बचा कौन सा एरिया, देखो ये इन टू इन वाला बचा ना, दिस इज शॉर्ट वॉल, इसका लेंथ छोटा है पिछले वाले से, ठीक है। तो इसका अगर हमको एरिया निकालेंगे, फिर से इंटू 3 कर देंगे, सेम ही तो है, ये लाल को हटाकर ब्लू रख दो आप, इसका हमको सपोज एरिया पता है, इसका हाइट भी सेम है, तो वही वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। इंटू 2 कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वॉल है, ओके, 2 शॉर्ट वॉल है। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एस्टिमेशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क। एक एग्जांपल हम दिए थे बाउंड्री वॉल का, क्लियर, इतना दूर तक क्लियर है। यस मैम। हाँ, अब इसमें फंडा क्या है, इसमें फंडा ये है कि पहले सेंट्रल लाइन निकालो, ठीक है। लॉन्ग वॉल का हमको क्या चाहिए, लॉन्ग वॉल का ये एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए पहले बोलो, इन ऑर्डर टू फाइंड दिस एरिया व्हाट आर द डाटा वी मस्ट हैव। सपोज दिस लेंथ कितना है, सपोज ये लेंथ है तुम्हारा L1, ओके। तो हमको ये लेंथ चाहिए कि नहीं चाहिए एरिया निकालने के लिए, और ये width है। हाँ हाँ, ये विड्थ चाहिए, ओके। सपोज विड्थ तुमको दिया रहेगा, ओके, और ये डायमेंशन है तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी डायमेंशन दिया रहेगा, ओके, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया रहेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ दिया रहेगा, इन टू इन, ठीक है।
ये दिया रहेगा। सपोज ये है तुम्हारा 4 मीटर, ये सपोज 3 मीटर दिया रहेगा, ठीक है। तो ये लेंथ हमको कैसे निकलेगा बोलो तो, ये लेंथ निकालने के लिए तो हाउ वी विल गेट दिस लेंथ, एंड दिस थिकनेस इज सपोज योर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये थिकनेस है तुम्हारा 0.2 बोलते, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लेंथ निकल आएगा। यस मैम, आ जाएगा। इजी है ना। ये लेंथ के लिए क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितना है, 4 है, 4 ऐड कर दो, ठीक है, ठीक है। +2 × 0.2। हाँ हाँ, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट 0.2 ऐड कर सकते हैं, या हम निकाल सकते हैं कि ये सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन हम पहले निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर Yes. यहाँ तक सेंटर टू सेंटर लाइन, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा बोलो तो, सेंटर लाइन लेंथ CL लेंथ कितना होना चाहिए, 4 + 0.2। हाँ, मतलब दोनों तरफ है, क्या है, ये है 0.2 का हाफ, ये है 0.2 का हाफ, सो दिस विल बी 2 × 0.2 का हाफ, ओके। तो सिंपली दैट विल बी 0.2 ओनली, ठीक है। तो पहले सेंटर लाइन निकालो, ठीक है, उसके साथ लॉन्ग वॉल का लेंथ निकालने के लिए सेंटर लाइन के साथ हाफ ऑफ द विड्थ इस तरफ, हाफ ऑफ द विड्थ इस तरफ, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्लस 0.2 ही ऐड करना है, ओके। तो इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिंपली तुम डायग्राम से ये आउट टू आउट लेंथ निकालो, ठीक है। आउट टू आउट लेंथ निकाल के विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा, एरिया इंटू हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। इतना फॉर्मूला याद रखने का भी जरूरत नहीं है कि सेंटर लाइन निकालो ये, ठीक है। कभी कभार लगता है कि हमको सेंटर लाइन पहले, कभी कभी सेंटर लाइन दे देता है, ओके। इन मेनी क्वेश्चंस दे विल गिव यू द सेंटर लाइन, जैसे ये इन टू इन वाला डायमेंशन नहीं देके सेंटर लाइन दे देगा। तो क्या करना है, सिंपली यहाँ का 0.2/2, यहाँ का 0.2/2 ऐड करके टोटल लेंथ निकालेंगे, ओके। और इन टू इन कैसा हो जाएगा, सिंपली ये इनर टू इनर लेंथ हमको चाहिए, इनर टू इनर लेंथ, okay, into width into height will give you the short wall dimensions. Clear है? ओहो, Yes ma'am. ओके। तो सेंटर लाइन मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग वॉल और टेडियस हो जा रहा है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल टेडियस हो जा रहा है, मतलब हमको एक बार लॉन्ग वॉल का मेजरमेंट निकाल ले, फिर इंटू 2 कर रहे या 3 कर रहे, जितना नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल्स होगा, फिर शॉर्ट वॉल का निकाले इंटू 2, 3, 4, जितना शॉर्ट वॉल्स होगा उतना कर रहे हैं, राइट। तो ये टेडियस हो जा रहा है, तो क्या निकाला, अब हम लोग इजी में करेंगे, क्या, सेंट्रल लाइन मेथड करेंगे। मतलब कुछ नहीं, हम ये सेंट्रल लाइन लेंथ निकाल लेंगे। सपोज ये लेंथ है यहाँ से लेकर L1, ठीक है, ये लेंथ है यहाँ से लेकर L2, यहाँ से लेकर L3, ठीक है, और यहाँ से लेकर L4। सो टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ कितना होगा, टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ विल बी योर L1 + L2 + L3 + L4, राइट, राइट। तो इस टोटल सेंट्रल लाइन को अगर हम ये विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट दिस टोटल एरिया, ओके। ये पूरा एरिया हमको निकल आएगा। अगर हम ये टोटल सेंट्रल लाइन से इफ वी मल्टीप्लाई दिस टोटल लेंथ ऑफ सेंट्रल लाइन, मतलब ये जो लाल वाला को ग्रीन वाला के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, तो वी आर गेटिंग व्हाट, टोटल एरिया ऑफ दिस बाउंड्री वॉल आ जाएगा, इनटू लेंथ कर दो, इनटू हाइट कर दो, यहाँ से जो भी वॉल्यूम निकला सेम वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा, ओके। क्लियर, सेंट्रल लाइन कैसे करते हैं, यहाँ पे लॉन्ग वॉल का लेंथ शॉर्ट वॉल का लेंथ निकाल के विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करके एरिया निकाला था, यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल सेंट्रल लाइन में निकालेंगे, फिर विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करके एरिया निकलेगा, देन एरिया के साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, वी विल गेट द वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है, या लिमिट वी कैन से दैट इट इज एप्लीकेबल ओनली टू दी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। सिमेट्रिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ये एप्लीकेबल है, ओके। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ये वॉल सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर तुम सेंटर लाइन से काटोगे, क्रॉस सेक्शन में ऐसे सेंटर लाइन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटोगे, तो यहाँ पे भी सेम विड्थ का जो भी वैल्यू है, ये थिकनेस जो भी है, यहाँ पे भी सेम अमाउंट का थिकनेस होगा, ओके। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। तो वैसे टाइप के स्ट्रक्चर में ही हम ये सेंट्रल लाइन मेथड यूज कर सकते हैं, अनसिमेट्रिक में हम यूज नहीं कर सकते सेंट्रल लाइन मेथड, तब हमको यही फॉलो करना पड़ता है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, ओके।
लेकिन अगर कोई भी स्ट्रक्चर तुमको लग रहा है सिमेट्रिक है, आंख बंद करके सेंटर लाइन मेथड फॉलो करना है। ओके, मैम एक क्वेश्चन है। बोलो। मैम सेंटर लाइन मेथड में आपने बोला जो सेंटर लाइन का लेंथ है उसको हम्म विड्थ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हाइट से करना पड़ेगा ब्रिक वर्क हम्म निकालने के लिए। हम्म लेकिन जो कॉर्नर होता है वहां पर तो डबल डबल आ जाएगा ना, जो विड्थ नहीं होता है। नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, ये जब हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे ना तब तुमको दिखाएंगे क्यों नहीं आ रहा है। ओके, ओके। ठीक है। गुड क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ये रहेगा, लेकिन जब हम लोग करेंगे तो देखना नहीं आएगा। ठीक है, तुमको हिंट दे रहे क्यों नहीं आएगा। देखो इसका लेंथ कहाँ से लेकर कहाँ तक है, देखो इसका लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है सिर्फ, है ना। इस वाले का लेंथ, अच्छा ये लाइन है, हाँ। देखो इस वाले का लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, इसके साथ अगर हम ये विड्थ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन सा एरिया आएगा, ये एरिया, सिर्फ ये एरिया यस मैम। आ रहा है ना। तो तब तो ये हाँ एरिया मैम। तो निकल, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेंटर लाइन देखो, यहाँ से एक सेंटर लाइन है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक सेंटर लाइन है। ठीक है, इसके साथ अगर हम विथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आ रहा है, हाँ समझ गया मैम। आ रहा है ना। हाँ आ अब रहा है। देखो यस मैम। एक बार ग्रीन कलर यहाँ पे आ रहा है, एक बार रेड कलर भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है ना। ठीक यस है, मैम। और ये वाला एरिया तो हम कंसीडर ही नहीं किए। ठीक है, जब ये रेड से हम एरिया निकाले ये तब भी नहीं आया था, ये वाला एरिया उसमें इंक्लूड नहीं था, जब ग्रीन से किए तब भी ये इंक्लूड नहीं था। वेरएज इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें एक बार रेड वाला का भी एरिया आ रहा है, एक बार ग्रीन वाला का भी एरिया आ रहा है, मतलब डबल आ रहा है, राइट। तो ये वाला का मतलब इसी ये वाला एरिया यहीं पर ही कंसिडर हो जा रहा है 2 बार। क्लियर, समझ में आया। यस मैम। तो यही है कि तुमने जो बोला सही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ओवरलैप यहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो ओवरलैप का मतलब क्या है, 2 एरिया, इसका भी एरिया यहीं पर ही कंसिडर हो जाएगा। ओके यस मैम। ओके, ठीक है। अब आते हैं ये जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के पहले हम लोग को डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क, ये है हमारा एक सिंपल आइटम्स ऑफ वर्क जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एस्टिमेट करना पड़ता है, और भी है, ये मेन है। ओके, तो फर्स्ट में आ रहा है क्या, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, एंड इसी के आ जाएगा अर्थवर्क इन फिलिंग। ठीक है, मेनली फुटिंग में हमको एक्सकवेट करना पड़ता है, तो ये करने के लिए भी तो पैसा लगता है, लेबर लगता है, मशीन लगता है, पैसा लगता है, राइट। तो इसको हम लोग किस में मेजर करेंगे, देखो वी नो दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ एंड दिस इज थिकनेस, दिस इज डेप्थ। सो वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू डेप्थ। ठीक है, मीटर क्यूब में आ गया। दूसरा है तुम्हारा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमको BFS बिठाना है, फुटिंग के नीचे सोलिंग देना पड़ता है। ओके, उसको BFS बोलते हैं, ब्रिक फ्लैट सोलिंग। उसका भी यूनिट क्या होना चाहिए, इट्स यूनिट शुड बी मीटर स्क्वायर। हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ देखते जाओ तुम लोग। ओके, फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा, उसके ऊपर हम लोग देंगे PCC। ओके, तो इसका भी यूनिट मीटर स्क्वायर क्यूब में होगा। फिर ब्रिक वर्क, मैसनरी वर्क, ब्रिक वर्क, इसका भी यूनिट है तुम्हारा मीटर क्यूब, वॉल्यूम में मेजरमेंट चाहिए। ठीक है, फिर आएगा कंक्रीट वर्क। कंक्रीट वर्क भी अब देखना पड़ेगा कि किस जगह पे हम लोग दे रहे हैं। ओके, तो मैक्सिमम तुम लोग का मीटर क्यूब में ही आता है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट वर्क। ठीक है, ये है DPC, मतलब प्लिंथ लेवल के ऊपर हमको ये देना पड़ता है। फॉर वाई DPC क्यों देता है, फुल फॉर्म डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, नीचे से जो डैम प्रूफ। हाँ, नीचे से जो पानी ऊपर की तरफ इंक्लूड होगा उसको रोकने के लिए कि यहाँ पे एक डैम प्रूफिंग कोर्स दे रहे हैं हम लोग। ओके, और रूफिंग है, फ्लोरिंग है। ठीक है, ये सब का यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर, प्लास्टरिंग का भी मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, फ्लोरिंग, रूफिंग सबका मीटर स्क्वायर यूनिट है। दूसरा है वुडन वर्क। वुडन वर्क मेनली कहाँ पे होता है तुम लोग का, शटरिंग टाइम में, फॉर्म वर्क में होता है। ठीक है, शटरिंग मतलब वर्टिकल स्ट्रक्चर के लिए जो, मतलब एक केस रेडी कर रहे हैं उसके अंदर कंक्रीटिंग करेंगे। अगर यहाँ पे ये कवर नहीं देंगे तो कंक्रीट कहाँ पे ढलाई करेंगे, उसका स्ट्रक्चर शेप कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये जो वर्टिकली स्ट्रक्चर जो भी है, कॉलम वॉलम, इसके लिए हमको बोलते हैं शटरिंग। जो हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रक्चर है जैसे स्लैब, इन सब के लिए जो शटरिंग लगता है उसको बोलते हैं, फॉर्म वर्क लगता है उसको बोलते हैं सेंटरिंग, एंड दीज आर द स्टैंडिंग। ओके, तो ये सब है तुम्हारा फॉर्म वर्क।
और स्टील वर्क तो है, ये आएगा तुम्हारा बार बेंडिंग शेड्यूल में। स्टील वर्क मतलब कितना रॉड लग रहा है, कोई बता सकता है इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर में है कि नंबर्स में होगा, ना कि कुछ और है इसका यूनिट? मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। क्वेश्चन है कि इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे हम अर्थवर्क बोले ना मीटर क्यूब में मेजर करना पड़ता है, ठीक है, जैसे हम लोग प्लास्टरिंग बोले मीटर स्क्वायर में करना पड़ता है, तो ये जो स्टील वर्क है इसका किस में मेजरमेंट होता है? नंबर में, ना कि क्या बोले लेंथ में, ना कि कुछ और है? मैम वेट होगा। यस यस यस, वेट, ठीक है, वो हम लोग को कहाँ से आएगा? बार weight। बेंडिंग शेड्यूल से। वेरी गुड, केजी में होता है, टन या केजी। उसके बाद वो बिल्डिंग के बाद दूसरा स्ट्रक्चर क्या क्या है रोड कंस्ट्रक्शन में? ये भी अर्थ वर्क है। ओके, इतना कटिंग, कितना कटिंग चाहिए? वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क कितना? ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन है, रोड वर्क का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो कितना, यहाँ पे तो अर्थ था, उसको तो काट निकाला, तो कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, किस मेथड से निकालेंगे, ये सब हम इस वाले में, दिस इज कॉल्ड फिलिंग और बैंकिंग। ओके, अंडरग्राउंड रिजर्वर का भी एस्टिमेट, ठीक है, अंडरग्राउंड रिजर्वर एक वाटर टैंक है नीचे, ग्राउंड के नीचे, उसका एस्टिमेट करना है, ये भी हम सीखेंगे। फिर ये जो तुम्हारा सरफेस ड्रेन है, नाला, उसका भी हमको निकालना है, ठीक है, ऐसा क्रॉस सेक्शन होगा, लेंथ अगर पता है तो क्रॉस सेक्शन का हमको डिफरेंट क्वांटिटी एस्टिमेट निकालना है। ये है सेप्टिक टैंक का भी हम लोग करेंगे। ओके, फिर आता है बार बेंडिंग शेड्यूल। तो बार बेंडिंग शेड्यूल का ये डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा, और भी यहाँ पे और भी लगेगा लंबा। एक एग्जांपल देखो, ऐसा होता है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है ना, बार बेंडिंग, हमको बार को बेंड करना है, बेंड करने से लेंथ बढ़ता है, ठीक है। एक्चुअल लेंथ अगर 100 मीटर है, 10 मीटर है, तो बेंडिंग करने के बाद थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो कितना होना चाहिए, आफ्टर बेंडिंग कितना होगा, वो लेंथ हमको चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग आफ्टर बेंडिंग वाला निकालेंगे, फिर उसके बाद एक्चुअली स्ट्रेट में कितना होना चाहिए था। सपोज बेंडिंग करने के बाद 100 मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया, लेकिन एक्चुअली में उसका लेंथ 10 मीटर नहीं होता है, उससे थोड़ा कम होता है। तो हमको जब चाहिए, ऑर्डर करने के लिए चाहिए, तब हमको वो स्ट्रेट लेंथ चाहिए रहता है। ओके, तो उसका कैसे मेजरमेंट करना है, कटिंग लेंथ जिसको बोलते हैं। ओके, तो वो मेजरमेंट करेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल से, और यहाँ से केजी में आएगा। देखो, यस मैम। रेट एनालिसिस क्या होता है, थोड़ा रुको, हाँ हो गया क्या 50, 1 मिनट, ठीक है। रेट एनालिसिस, ये दूसरा टॉपिक क्या था, रेट एनालिसिस। देखो, किसका एनालिसिस करना है, रेट। रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब क्या है, एक यूनिट अमाउंट का हमको पैसा निकालना है, एक यूनिट अमाउंट का कॉस्ट निकालना है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल अगर लेंगे, से फॉर एग्जांपल ब्रिक वर्क का यूनिट कितना है, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट कितना होता है, क्या होता है ब्रिक वर्क का, किस में मेजर करते हैं हम लोग, क्यूबिक मीटर में। क्यूबिक मीटर में। तो यहाँ पे आएगा कि सपोज 10 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क का कॉस्ट कितना है, उसका यूनिट है तुम्हारा कितना, 10 क्यूबिक मीटर। ओके, मतलब तुम, ठीक है, तुम 1 क्यूबिक मीटर का ही बोलो, 1 क्यूबिक मीटर का ब्रिक वर्क करने में, ठीक है, कितना खर्चा होगा, उसका एनालिसिस करने को ही हम लोग बोलते हैं रेट एनालिसिस। या बोलेंगे कि 10 मीटर क्यूब का कंक्रीट वर्क करने में कितना खर्चा होता है, ठीक है। अगर तुमको 10 मीटर क्यूब का पता है, तो तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर सपोज 100 मीटर क्यूब का है, 100 मीटर क्यूब तुमको चाहिए था, क्वांटिटी चाहिए था, ठीक है। तो 10 मीटर क्यूब का तुमको रेट पता है ऑलरेडी, तो इंटू 10 कर दो, तो 100 का भी पता चलेगा, ठीक है। तो रेट एनालिसिस का Yes, मतलब है कि यूनिट अमाउंट का अगर हमको क्या बोलते हैं कॉस्ट निकालना होगा, तो क्या क्या निकालेंगे। तो वहां पे तो मटेरियल तो लगेगा ही, कितना यूनिट अमाउंट ऑफ ब्रिक वर्क करने में कितना मटेरियल्स लग रहा है, मटेरियल में क्या क्या लगता है, ब्रिक, सीमेंट, सैंड लगता है, ठीक है। उसका क्वांटिटी एस्टिमेट करेंगे, खर्चा, फिर इसको बोलते हैं क्वांटिटी एस्टिमेट। ये जो अमाउंट निकला है इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट, ठीक है। फिर से ब्रिक वर्क, माटी बाली रख के क्या तुम्हारा ब्रिक वर्क हो जाएगा, नहीं, क्या लगेगा, लेबर का भी चार्ज लगेगा। तो क्या क्या टाइप का लेबर है, ठीक है, पर लेबर का कितना रेट है, ये सब, कितना लेबर लगेगा, ये सब का भी खर्चा होगा, राइट। उसका भी लेबर कॉस्ट चार्जेस जिसको बोलते हैं, लेबर चार्ज निकालना है, फिर मटेरियल का कॉस्ट निकालना है, ठीक है। उसके साथ एक्स्ट्रा ऐड करते करते हम लोग का टोटल जो खर्चा होगा, ठीक है। तो 10 मीटर क्यूब में तुम्हारा मीटर क्यूब में कितना खर्चा लग रहा है, मतलब उसमें लेबर चार्ज, मटेरियल कॉस्ट, एक्स्ट्रा चार्ज सब मिला के कितना खर्चा होगा 10 मीटर क्यूब निकालने के लिए। क्योंकि हम लोग का यूनिट है क्या, ब्रिक वर्क का यूनिट अमाउंट इज 10 मीटर क्यूब, ये कंसिडर करते हैं। ओके, तो 10 क्यूबिक मीटर का ब्रिक वर्क करने में
कितना खर्चा होगा, सब कुछ मिला के उसको बोलते हैं, उसको एनालिसिस करने को ही बोलते हैं रेट एनालिसिस ऑफ ब्रिक वर्क। एक एग्जांपल दे रहे थे, वैसा बहुत सारा होता है, जैसे अभी हम बोले ना अर्थ वर्क, कंक्रीट वर्क, पीसीसी वर्क बहुत होता है, वैसे हम करेंगे स्लोली। ओके, अब तुम्हारा ये दूसरा टॉपिक क्या है, स्पेसिफिकेशंस ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का स्पेसिफिकेशन, क्या क्या मटेरियल जनरली यूज होता है कंस्ट्रक्शन वर्क में, ब्रिक, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, राइट। और दिस आर द टाइप्स ऑफ द वर्क, देखो पीसीसी, रेनफोर्समेंट, सीमेंट कंक्रीट, ब्रिक वर्क, सीमेंट प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, व्हाइट वॉशिंग, डिस्टेम्परिंग, पेंटिंग, ये है स्पेसिफिकेशन, मतलब कैसे करना है, ठीक है, हमको एकदम क्या बोलते हैं, एज पर स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करके हम कैसे कंक्रीट को ढलाई करेंगे, कैसे कंक्रीट को मिक्स करेंगे, कितने अमाउंट में मिक्स करेंगे, कैसे उसको पुट करेंगे, सब कुछ यहाँ पे आता है स्पेसिफिकेशंस के अंदर। ओके, हाउ टू यूज, हाउ टू मेक द सैंपल, मतलब जो भी है ये सब कैसे बनाएंगे और कैसे प्लेस करेंगे, इसके ऊपर ही ये आता है टॉपिक। ओके, लास्ट पे आता है क्या, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, दिस इज द हाउस यू हैव एस्टिमेटेड, इतना खर्चा होगा, तुमने बनाया, कॉस्ट कितना वो भी निकल आया, अब तुमको इसको बिक्री करना है, आफ्टर 10 ईयर्स, इतना भी ईयर्स इसको बिक्री करना है, तो इन दैट प्रेजेंट ईयर तो इसका वैल्यू कितना है, मार्केट में वैल्यू कितना है, दैट इज कॉल्ड द वैल्यूएशन, उसी प्रोसेस को बोलते हैं वैल्यूएशन। ठीक है, तो सेवरल फैक्टर्स के ऊपर ये वैल्यूएशन डिपेंड करता है, किस जगह पर है, ठीक है, तुम्हारा इंप्रूवमेंट, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट किए हो, कंडीशन कैसा है तुम्हारे घर का, मार्केट में अभी फिलहाल उसका रेट कैसा है, राइट, उसके लोकेलिटी में क्या फैसिलिटी है, मतलब पास आसपास में तुम्हारा ट्रेन फैसिलिटी है कि नहीं, रोडवे है कि नहीं, राइट, या जंगल में है तुम्हारा वो घर, तो ऑल दिस थिंग अफेक्ट्स द वैल्यूएशन, डिमांड के ऊपर भी ये अफेक्ट करता है, ये डिटेल्स में भी ये हम पढ़ेंगे। ओके, लास्ट में आता है कि एस्टिमेशन और वैल्यूएशन का डिफरेंस जो हमको समझ में है अभी तक, ये है एस्टिमेशन, दैट मीन्स दिस इज बिफोर कंस्ट्रक्शन जो खर्चा निकाल रहे हैं अप्रोक्सीमेट, ओके, एंड दिस इज आफ्टर कंस्ट्रक्शन व्हाट विल बी द वैल्यू और द कॉस्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं हम वैल्यूएशन। ओके, इज इट क्लियर? 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। हाँ मैम, तो दिस इज द टोटल, ठीक है मैम, ठीक ही है मैम, ओ ठीक है ना, अच्छा अच्छा, हाँ, so this is the overall overview of the subject that we will be learning, theoretical भी सेम यही होगा जो सुजाता मैम पढ़ाएंगी। ओके, और हम यहाँ पे एक्चुअली ये तो सेशनल था, न्यूमेरिकल्स तुमको करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे लेकिन टाइम ज्यादा नहीं मैम है। एक क्लास में एक ही नहीं है, आज ही है। आज ही है। बोलो। हाँ बोलो। मैम मैं बोल रहा था, आप अपने क्लास के लिए एक अलग गूगल क्लासरूम बना लीजिए, मतलब वो क्लासरूम में ना सारे सब्जेक्ट का मटेरियल आता है तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक अगर अलग नहीं मैम, से नहीं मैम, वही ठीक है मैम, वही ठीक है मैम, अमित गुप्ता ही ठीक है, उसमें ही ठीक है, वही तो था। आगे आगे अगले अमित गुप्ता। अरे मेरे को बोलने दीजिए ना। अच्छा सुनो, तुम लोग को क्या प्रॉब्लम होता है, देखे एक बोल दे, सोल्यूशन देते हैं हम, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, थोड़ा टाइम है तो। ओके